Good afternoon. I'm Mishan and I am running ESC Civil Engineering 2022 and we are here for introduction of our strategy for this exam. So we'll start with my brief intro and I'm graduated from NIT Srinagar in 2019 and it was my fourth attempt for the exam to achieve this feat and this was my first time that I cleared this exam. Okay, so we will start with my journey. What was it? So first I will tell you about the exam and then I'll take your questions. So I got to know about this exam in July 2018 that there is such exam exists, and then I appeared for the prelims in 2019 and scored 80 out of 500 in prelims 19, and my score in technical was 45 out of 300 and in GS it was 35 out of 200. So then I started preparing seriously and joined MadeEasy Jaipur in July 2019 and prepared well for 6 months, but it was very short time. So obviously I didn't get time for revision and didn't appear for test series. Those were my mistakes and I paid for this. I again failed at prelims and scored 224 out of 500. So though I was hopeful that I cleared at prelims and I joined mains batch, I was sitting there only in 2020 February, and after 1 month COVID happened and our online classes were resumed. Though I wasn't appearing for mains exam, but I did study all the materials and all the videos that were provided by MadeEasy, and it was that turning moment of my preparation. And once I prepared for the conventional part exam, I got to know about the subject very well, that how should I prepare. So I'll advise you all that you shouldn't focus only on prelims and focus on the conventional part more. It will make your prelims much easier. Okay. Then I studied for mains. I appeared for other exams like SSC JEE and appeared for some exams like HPCL, IOCL, rejected everywhere, and I got about 18 months for my ESC 2021. I got 18 months after I failed in ESC 2020, and I actually utilized my all the COVID time for this preparation, and it was the crucial time. So what I did in this, prepared for mains first and skipped all the prelims preparation for first 6 months. And this helped me in having grip over multiple concepts that are not taught in our prelims. And after this, I started preparing for GATE that was scheduled in February. So I gave it 4 to 5 months. And then after I appeared for ESC 2021 pre, इसके लिए भी मैंने 6 महीने दिए. इसमें मेरा स्कोर दो मैंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 275 आएगा, आया 252. इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ इन 21 ऑल्सो. पर यही मेरा टर्निंग मोमेंट था. यहीं पे मेरे को पता लगा कि एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है और कैसे मुझे बाकी सब्जेक्ट्स अप्रोच करते हैं. तो इसके बाद जब मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इस वाले 2021 में मेरा फाइनल स्कोर था 797 और इसमें मेजर पार्ट मेरे इंटरव्यू का रहा. इंटरव्यू में मेरा स्कोर 140 था और इसमें भी मेरा टेक्निकल थोड़ा सा कमजोर रह गया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया 7 मार्क्स. दो इससे मेरे को NHI में अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ. और इसके बाद ESC 2022 हुआ. इसके लिए मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस किया था क्योंकि मेरा जो मटेरियल था, जो पढ़ना था, मुझे कंटेंट वो ऑलरेडी, मुझे सिर्फ रिवीजन चाहिए था और अपना एक फ्लो बनाना था, जिसके लिए मैं OTS जो MadeEasy की टेस्ट सीरीज होती है ऑफलाइन, उसी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था. और ESC 2022 में मेरे
प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 300 मार्क्स मुझे एक्सपेक्टेड है, दो अभी तक मार्कशीट आई नहीं है, तो आई शेयर वंस इट इज़ आउट। और उसके बाद मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और अगर उनके पास टाइम है, जो 3rd ईयर या 4th ईयर से हैं, वो लोग मेंस पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा उनको बेनिफिट करेगा, क्योंकि मेंस में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ाई जाती है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे, जैसे आरसीसी का अगर एग्जाम्पल लें, आरसीसी में रिटेनिंग वॉल्स हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और उसके अलावा स्टेयरकेस हो गया, लिंटल डिजाइन हो गया, स्लैब के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, 2-वे स्लैब के। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले पोर्शंस तैयार करते हैं तो इट बिकम्स वेरी हैंडी इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर मेंस तैयार कर रहे हो और प्रीलिम्स के लिए आपके पास अगर क्रिस्प नोट्स भी हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कोई अलग स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से आपका प्री हो जाएगा। और उसके अलावा कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यार गेट साथ में शेड्यूल्ड है, प्री साथ में है, तो कैसे हम उनको कंसिडर करें कि कौन सा एग्जाम देना है, किसके लिए प्रिपरेशन करना है। मैं यही बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज रहने की। जब आपको पढ़नी एक ही बात है, वही आरसीसी पढ़नी है, स्टील पढ़नी है, तो कंफ्यूजन लेते ही क्यों, कॉन्सेप्ट सेम रहता है सब में, आपको क्वेश्चन का तरीका अलग होता है। इवन मैं ये बोलूँगा गेट इज कंपेरेटिवली ईजियर। गेट में आपको पागल बनाया जाता है लैंग्वेज से, और कई बार आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हो, उसको आंसर वो बोलेगा किलो न्यूटन में करना है, आप किलोग्राम में करके आते हो, न्यूटन में करना होता है, एमएम में, एमएम इस तरह यूनिट्स रहता है। कभी लैंग्वेज बोलता है कि कुछ और पूछा होता है, हम कुछ और आंसर दे देते हैं, क्योंकि हमें हैबिचुअल होता है कि अरे यही तो निकालते थे पहले, प्रीवियस ईयर में तो ये पूछा था। हम अलर्ट नहीं रहते हैं, गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, और गेट में रैंक बिगड़ जाता है। गेट में ऐसा कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता है, इवन सिलेबस भी शॉर्ट रहता है। आपको जितना विविडली, जितना डिस्क्राइब्ड आपको ईएस में पढ़ना होता है, उतना गेट में नहीं पढ़ना होता है, काफी आपका सिलेबस कट हो जाता है गेट में। तो उसलिए भी आप कंफ्यूजन नहीं रहना है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, एनालाइज कीजिए और अपना स्कोर बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्लासरूम यूटिलाइजेशन है। क्लासरूम में कई लोग आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्लासरूम में आइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट मेकिंग में कई बार मजाक भी उड़ाते हैं लड़के कि अरे ये तो रेड पेन से यूज नोट्स बना रहा है, अलग अलग हेडिंग लिख रहा है। मैं बोलूंगा बनाइए, अलग अलग पेन यूज कीजिए, जितने आपके नोट्स क्लियर बनेंगे इतना अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़के कलरफुल पेन यूज नहीं करते। बनाइए अच्छे से नोट्स। मेरे खुद के नोट्स काफी बेकार थे, तो मुझे लगा था कि बाद में कि यार इसको पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं करता है, सारा सब कुछ ब्लू पेन से भरा पड़ा है, कुछ भी अलग नहीं दिखता है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। नोट मेकिंग में मुझे 1-2 कमियां बाद में फील हुई, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 2 पेज होते हैं, एक बार में खुलते हैं कॉपी के। आप इधर ये वाला खाली छोड़ सकते हो और सिर्फ इस पे लिख सकते हो। ये खाली इसलिए क्योंकि आप, जरूरी नहीं है एक बार में आपका सब कुछ कवर हो जाए। आप हो सकता है बाद में सेल्फ प्रिपरेशन भी करेंगे, आपको नई चीजें पता लगेगी, कुछ चीजें आपकी क्लास में कवर नहीं हुई है, आपको टेस्ट सीरीज में कुछ नया क्वेश्चन मिल जाएगा, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ और कंटेंट मिलेगा। तो ये जो खाली पेज है, इस पे आप बाद में यहाँ पे कुछ भी होगा, तो स्लैब डिजाइन का कुछ क्वेश्चन है, तो आपको स्लैब के बारे में कुछ नया पता लग रहा है, कुछ भी नई चीज, नया कॉन्सेप्ट पता लग रहा है, आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि मैंने पूरी कॉपी भर दी थी, तो मेरे पास जगह थी नहीं, फिर मैं स्टिकी नोट्स चिपका करता था, यहाँ पे स्टिकी नोट्स की नया पता लगा है, तो उससे कॉपी बेकार हो जाती थी। तो वो नहीं करना है। नोट मेकिंग में आप इस तरह कर सकते हो। और उसके अलावा थ्योरी बुक्स, लोग पूछते हैं कि मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, क्लासरूम नोट्स एनफ है या नहीं है, तो मटेरियल कौन सा बेहतर रहेगा, ईएस मास्टर, मीडीजी। तो मैं ये कहूँगा मटेरियल जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको अवेलेबल है, वो सफिशिएंट है। थ्योरी बुक्स जो हैं वो मोर देन एनफ है, हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक बीएमसी है, और एनवायरनमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता थ्योरी बुक्स की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी टेक्निकल पोर्शन में। थ्योरेटिकल की आपको जरूरत पड़ सकती है थ्योरी बुक्स की जीएस के लिए। जीएस में आप लोग थ्योरी बुक्स कर सकते हैं, और अगर आपको जरूरत लगे कि आपका कंटेंट कम पड़ रहा है, टेस्ट सीरीज में आपको पता नहीं लग रहा है कि यार क्वेश्चन कहाँ से रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा थ्योरी बुक्स मोर देन एनफ है। स्टैंडर्ड बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको।
स्टैंडर्ड बुक्स भी काफ़ी बल्कि होती हैं, तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप इवन एक बार अगर पढ़ भी लोगे तो आपको रिवाइज भी करना है, आपको बाद में कंसोलिडेशन भी करना है अपनी स्टडीज़ का, तो वो भी सही नहीं रहता है। मुझे लगता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, थ्योरी बुक्स आप पढ़िए। उसके अलावा आपकी रहती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए वो बोलते हैं कि कितने टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कितने टेस्ट एनफ हैं। एनफ कुछ भी नहीं है, और कोई रिटर्न कांस्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 8 टेस्ट लगा लेंगे तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ। टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट देने ही नहीं है, आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो। मुझसे ज्यादा हैंडल होती नहीं थी, कई लोग 2-2 भी देते थे, 3 भी देते थे, पर आप टेस्ट दे दोगे पर उसका फिर एनालिसिस भी करना होता है, बाद में रिविजन भी करना होता है, तो वो सब नहीं हो पाता है। अगर आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज देते हो तो बाद में फिर आप जब आपको 1 महीना रहता है, 15 दिन रहता है, तो वो सिमट नहीं पाती चीजें। तो मैं यही बोलूंगा, आप कम से कम अपना स्टडी मटेरियल रखो। कोई भी एक जो भी आपके थ्योरी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, उनको विद टाइम छोटा करने की कोशिश करो। बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो अपने आप नोट्स का रिवाइज करने में टाइम आपका कम होता जाएगा, आपको अपनी कॉपी एकदम याद रहने लग जाएगी। नोट्स अपने खुद के बनाओ। टॉपर के नोट्स या जो नोट्स बाजार में प्रिंटेड मिलते हैं वो नहीं काम करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत तो लगी नहीं है, किसी और ने लिखे हैं, अपने हिसाब से लिखे हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे वो आपको ही समझ में आएंगे। किसी और को अगर मैं नोट्स देता हूँ, हो सकता है उसको वो इतने यूजफुल नहीं लगे जितने आपके नोट्स आपके लिए यूजफुल है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज देने के क्या तरीके हैं? टेस्ट सीरीज आप दीजिए, अगर प्रीलिम्स की दे रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूरे कीजिए। मेरा जो अप्रोच आता था क्वेश्चंस का, मैं पहले 1 to 75 एक बार सारा पेपर देखता था, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो इजी हैं मैं एक बार में सारे करता था, जो भी मुझे आता है। एक राउंड पेपर का हो गया कि ठीक है ये मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। थ्योरी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा टाइम भी नहीं लगता है, कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, फटाफट अपने ए बी सी जो भी टिक लगाना है टिक लगाया जाओ, करे जाओ, 10-15 मिनट में सारा कवर हो जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड आप कीजिए, जो न्यूमेरिकल इजी है, सिंगल लाइन कैलकुलेशन है, आपको आते हैं, वो आप कीजिए। सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, मान लो उसमें आधा घंटा लग गया, 40 मिनट लग गए। उसके बाद थर्ड राउंड में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको नहीं आए या जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी थी, आपको क्वेश्चन आता था, आप वो कर सकते हैं। और फोर्थ राउंड में आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, आप गैस आंसरिंग करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं 4 राउंड में अपना पेपर करता था, जिससे मुझे टाइम भी सेव होता था, मैक्सिमम मेरा अटेम्प्ट जाता था। और ये मैंने सीखा था 21 की टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो आपको सिर्फ अपने मार्क्स देख के नहीं बैठ जाना है, आप अपने क्वेश्चंस देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कौन से वो क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे, उसके बाद भी आपने गलत कर दिए क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो। तो आप उनको सेपरेट कीजिए कि ठीक है ये टाइप 1 क्वेश्चंस हैं जो मुझे आता था पर मैं भूल गया। टाइप 2 क्वेश्चंस सिली मिस्टेक्स, कि अरे इसमें नॉट वाला पूछा था मैंने यस वाला कर दिया, तो वो वाली आपके दिमाग में रहेगी कि यार ये उस टाइम टेस्ट सीरीज में मेरे से गलत हुआ था और अब मेरे को ये वाली गलतियां नहीं करनी है। तो ये 2 क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कुछ नया पैटर्न सीखने को मिलेगा कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता था या कुछ नई तरह से पूछा गया था, आप उसको रिलेट नहीं कर पाए जो आपने पढ़ा उसके साथ, तो टाइप 3 क्वेश्चंस आप बना सकते हो। और टाइप 4 क्वेश्चंस होगा जो आपका आइडिया ही नहीं है, कहाँ से आया है में उड़ता हुआ, वो आपको अलग से मेंटेन रखना है। तो इस तरह 4 टाइप के 5 क्वेश्चन हो जाए, और जब आप रिवाइज करोगे उसको तो आपको सारे 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से कि जिस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की थी वो देख लिया एक लाइन में, जो मुझे नया सीखा मैंने, जो नया आप सीखते हो वो आप इस तरह नोट्स में, जो स्टिकी नोट्स बना के मैं चिपकाता था, आप इस तरह यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आप नया सीखे हो वो आप लिख सकते हो। और टेस्ट के अंदर कई बार बोलते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मेरा रैंक गिर रहा है। रैंक से पहली बात तो कोरिलेट करना ही नहीं है आपकी परफॉर्मेंस या आपकी नॉलेज। मेरी रैंक 100 आ रही है, मेरी रैंक 70 आ रही है, डजंट मैटर। रैंक के बहुत फैक्टर्स होते हैं, क्यों वो गिर रही है, आपके साथ टेस्ट कौन दे रहा है, कई बार लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कई बार लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में। तो आपको रैंक के हिसाब से नहीं जाना है, आपको अपने मार्क्स देखने हैं, खुद की परफॉर्मेंस देखनी है। पिछली बार मेरे 60 नंबर आए थे, इस बार मेरे को 65 लेके आने हैं, अगली बार 70 लेके आने हैं। डाउन भी अगर होता है कोई बात नहीं, अगला टेस्ट देंगे उसमें इंप्रूव करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है दूसरी बार।
इसके बाद आता है क्लासरूम का यूटिलाइजेशन हो गया था, और अभी आप वो पूछ सकते हैं कुछ अगर आपको डाउट हो किसी तरह के प्रिपरेशन रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई भी। आपने कहा कि आपने भी जुलाई में ज्वाइन किया था। हाँ हाँ जैसा ही हाँ हाँ 6 महीने में फिर उसको कैसा यूटिलाइज। सी मेरे साथ क्या हुआ था यार, जुलाई 19 में मैंने जैसे ज्वाइन किया था ना, तो इनिशियली जयपुर में बहुत रिलैक्स्ड आवर्स थे, 3-4 घंटे की हमारी पर डे क्लास होती थी, लगभग ये अक्टूबर तक चला, और ऑलमोस्ट हमारा 40% का सिलेबस खत्म हुआ था अक्टूबर तक। उसके बाद हमारे लॉन्ग स्टडी आवर्स कर दिए, 12-12 घंटे क्लासेस हो गई, और उसके बाद जैसे घर पर जाके टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो पहले के 3-4 महीने थे ना, मैंने ढंग से पढ़ाई करी थी, खुद को टाइम भी दिया था, घर पे भी टेस्ट भी देता था, क्लास टेस्ट होते थे उस टाइम, टेस्ट सीरीज के नहीं थे, क्लास टेस्ट देते थे, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन चल रही थी, प्रीवियस ईयर भी सारे सॉल्व हो रहे थे। फिर हुआ ये बाद में 12-13 घंटे क्लास होने लग गई, घर पे जाके टाइम नहीं मिलता था। आप अगर क्लास भी रिवाइज कर रहे हो कि आज 12 घंटे में क्या पढ़ा है, तो उसमें भी 1-2 घंटा चला जाता है, फिर वर्कबुक देखनी है, सोना भी है, तो नहीं हो पाता है। तो मैंने यही किया था कि मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा, पर टेस्ट सीरीज के जो 2-3 घंटे मिलते थे एक्स्ट्रा, मैं सोचता था इसमें मैं रिवाइज कर लूंगा, और जीएस के कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन थे जो मैंने छोड़ दिए थे, जैसे आईसीटी क्लास मैंने नहीं करी, एथिक्स की क्लास नहीं करी, करंट अफेयर्स क्लास नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे को पढ़ना भी नहीं है, वैसे मैं नहीं पढ़ने वाला, टाइम कम है। मेरे को उस टाइम ये था कि टाइम तो कम ही था, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, जो मेरे पास है, जितना है मेरे पास, जितना रिसोर्स मेरे को आता है, उतना मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइज करना था। ये मैंने उस टाइम सोचा था, अगर कुछ छूटता है मेरा छूटने दो, क्योंकि टाइम नहीं है, सब उसमें कर नहीं सकता। इसलिए मैंने टेक्निकल पढ़ा था, टेक्निकल में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, हाइड्रोलिक मशीन्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, हाइड्रोलिक मशीन मैंने छोड़ दी थी, स्टील हमारा आखिरी में कवर हुआ था, छोड़ दिया था, और फ्लूइड मेरा क्लियर नहीं था, फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे नहीं आता था, ओसीएफ नहीं आता था, बीएमसी मैंने इतना अच्छे से रिवाइज नहीं करा, ठीक है। लकीली मैं उस टाइम शॉर्ट नोट्स बना रहा था जब मेरा पहला टाइम था, तो शॉर्ट नोट्स से मेरा काफी टाइम सेव हुआ। हमारा बैच खत्म हुआ था 24 डेक को 2019, और प्रीलिम्स था 5 तारीख को जनवरी, मुझे बाद मुश्किल से 10 दिन थे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस जो मैंने पूरे साल कर रहे थे 6 महीने, कुछ भी नहीं देखा, अपने शॉर्ट नोट्स उठाए, 10 दिन मेरे उसमें ही खत्म हो गए। शॉर्ट नोट्स पढ़ने 14-15 सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं, 5 सब्जेक्ट में जीएस के करके गया था, तो उसी के अंदर मेरा दिन खत्म हो गए। 5 तारीख को अपेयर हुआ, काफी स्ट्रेस था, फर्स्ट टाइम एग्जाम ऐसे ढंग से दे रहा था, नहीं हुआ वो अलग बात है, दिल में निकल गया था, शायद अगर नहीं निकलता तो हो जाता। तो ऐसा मतलब मैं सीरीज अगर तुम यहाँ नहीं देना चाहते हो, घर पे जाके दे दो, क्वेश्चंस तुमको करने हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा टाइम कम है, तो तुम अपने सोर्सेज और कम कर सकते हो। टेस्ट से जैसे छोड़ दी थी, मैंने प्रीवियस ईयर पे ध्यान दिया था, प्रीवियस जो मेरे शुरू में रिलैक्स आवर्स थे, उस टाइम में प्रीवियस ईयर करता था, वर्कबुक करता था, तो वो सब मेरे को हेल्प करता था। तो अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट की, पर यह था कि आखिर में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, वो एक मिस्टेक थी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, पहले से कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो कि मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी से चीज़ें कवर करता चलूँ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं बहुत ही बेकार शॉर्ट नोट्स बनाया था, तो वो तो मेरे से तो बस की बात है नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत काम आते हैं, बच्चे 3-3, 4-4 पन्नों में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं शॉर्ट नोट से। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप फॉर्मूलाज लिखते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो अलग होते हैं वो लिखते हैं, कुछ ग्राफ्स, डायग्राम्स, या कुछ भी ऐसे 1 वर्ड की पॉइंट्स जो होते हैं थ्योरी के, वो लिखते हैं। तो शॉर्ट नोट से आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, तो वहाँ पे अपना टाइम बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है जीएस में कुछ आप छोड़ सकते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीएस में 10 सब्जेक्ट है ना, तो मैंने क्या किया था, मैथ्स और एप्टी तो करना ही है, क्योंकि उसमें यह है कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, अगर आपको आता है उसका एक ही आंसर होगा, सही निकाला तो कर लोगे और सही होता है। तो अगर आप मैथ्स और एप्टी भी ढंग से करते हो ना, तो 50 नंबर ऑलमोस्ट बन जाते हैं जीएस में, मैथ्स और एप्टी से सिर्फ। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, जैसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स था, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, अच्छे से जल्दी भी कवर हो जाता है, थोड़ी मैथ्स है उसमें, तो वो इजी पड़ता है। प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं अपने टेक्निकल वाले पार्ट से, वो मैंने पढ़ा था। मटेरियल साइंस हम 12वीं में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में शॉर्ट की डिफेक्ट और वो सब, तो वो भी जल्दी कवर हो जाते हैं, मेटल्स वगैरह थे उसमें। तो इस तरह मतलब जो भी आपके पसंद के सब्जेक्ट हो ना, तो मैंने ये 5 तो ये हो गए, एनर्जी एनवायरनमेंट, और डिज़ाइन ड्राइंग में मैंने डिज़ाइन फिलोसॉफी छोड़ी थी, ड्राइंग की थी, और बस इतना ही पढ़ा था। ये मैंने 4-5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चला गया था। मेरे फर्स्ट टाइम में 86 मार्क्स थे 200 में थे जीएस में। हाँ, थोड़ा सा गैस वर्क में चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो मैं करंट अफेयर आंसर ही नहीं कर रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर, कुछ तो सुनने में आ जाता है ना, मतलब न्यूज़ अगर थोड़ा बहुत अवेयर हो तो 12 में से 2 क्वेश्चन तो लग ही जाते हैं। और भी दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे एथिक्स हो गया, कई बार बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा ऐसा है तो आप ऐसा इसमें क्या करेंगे, तो उसमें आप पढ़ोगे फिर लगेगा यार ये तो नहीं करूँगा, तो वो वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे गैस वर्क भी करना है, जीएस में यही चलता है। आप कम से कम अगर आप 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप डिजाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ के गए 10 क्वेश्चन कर दोगे, 6 करोगे 7 करोगे, तो मैक्सिमम आप 70 तक खींच सकते हो अपना कि मेरे को ये तो आता है 60-70। उसके बाद चलता है गैस वर्क सारा, कि 20 क्वेश्चन करे, 10 सही हो गए 10 गलत हो गए, तो नेट तो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, इस तरह अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, इंट्यूशन डेवलप करना है, टेस्ट सीरीज दो, अगर टाइम है, क्वेश्चन बैंक है जीएस का, वो कर सकते हो। मैंने नहीं करे थे, थ्योरी बुक पढ़ी थी, जो ये 5-6 सब्जेक्ट्स मैंने बताया उसकी मैंने थ्योरी बुक पढ़ी थी पूरी प्रॉपर, अच्छे से प्रिपेयर किया था 21 में, 2020 में नहीं गया था। 21 में मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, 21 में मैंने ढंग से प्रिपेयर किया था, सारी सब्जेक्ट्स पढ़ी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था। टेक्निकल में और जीएस में वो 3-4 सब्जेक्ट छोड़ के गया था। टेस्ट सीरीज पूरी ईमानदारी से दी थी, एनालिसिस करता था, सब कुछ मैंने 21 में किया है। ये जो 18 महीने थे यही मेरा फाउंडेशन है, यहीं से मैंने सीखा था सब कुछ, और यहीं से मेरा जो ये गेट का रैंक भी आया। इस साल मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी 22 में, मैंने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट देकर आया था और बस उसका एनालिसिस कर लिया, नोट्स देख लिए, रिवाइज कर लिया, इतना ही किया 22 में। 21 में मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो वो सबको करनी पड़ेगी। आपका एक फेज आएगा 6-7 महीने का, उसमें आपको प्रॉपर एफर्ट देने पड़ेंगे। और कुछ उसके बाद जॉब के साथ मैनेज हो गया था, उसके बाद शायद से टेस्ट सीरीज ही दी थी आप। जॉब मेरी यार अभी लगी है अक्टूबर में, 21 से लगी है। हाँ, उस टाइम में फ्री था, कोविड था, सब फ्री थे। और सर प्रिपरेशन के फेज में एक ऐसा फेज भी आता है जब हमें मतलब खुद पे डाउट होता है हाँ। कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? होता है। अभी हम सर 12 बार हमारा क्लासेस चलते हैं, रूम जाने के बाद सर खाना खाने के बाद फिर मतलब और बुक खोल के पढ़े, ऐसा सिचुएशन ही नहीं बन पाता है, बट स्टिल हम पढ़ते हैं। फिर एक ऐसा फेज आता है कि यार मतलब छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, सर उसको कैसे डील करें, मतलब वो प्रेशर कैसे हैंडल करें? यार होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इवन हमारे कई दोस्त होते हैं जो कॉलेज से निकल जाते हैं, कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कमाते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं, तो हमको भी लगता है कि यार मैं कहीं अपनी ज़िंदगी खराब तो नहीं कर रहा, मैं इसमें आ गया, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सीट बार गिर जा रही है, कुछ होना नहीं होना। तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी प्रायोरिटी रखो। पहली बात तो नौकरी, ये नहीं है मैं ईएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं ईगो पे ले लूँ, मैं तो ईएस ही बनूंगा। मैंने एसएससी जेई भी दिया था, जेई में भी मैं सेलेक्टेड था, तो मैंने वो बैकअप रखा था। उसके अलावा पीएसयूज का एग्जाम भी देता था। ईएस का यही काम है कि ईएस आपको सब कुछ पढ़ा देता है, उसके बाद आपको बस एग्जाम देना है। तो एक तो पहली बात कि अपनी नौकरी कंफर्म करने की कोशिश करो, कोई भी एग्जाम आ रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रही है, दे दो। ऐसा मत करो कि यार जेई है, जेई थोड़ी बनूंगा, वो नहीं होता। जेई बनो, जेई भी क्या बुरा है, उसके बाद प्रिपरेशन करते रहो, वो तो होती रहेगी ना। तो पैसे आने चाहिए, तो वो वाला मोटिवेशन है एक। दूसरा मोटिवेशन ये है कि आप ईएस में सिंस बहुत लंबा टाइम होता है, 1 साल का साइकिल रहता है, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपना आपका कोई भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप कुछ भी ले सकते हो। मेरा वो पर्सनली क्रिकेट था, क्रिकेट में देखता था और पुराने वीडियोस देखता था, धोनी, युवराज और कोहली, ये मोटिवेट करते थे। तो कुछ भी ऐसा अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो तुमको पसंद आता हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, कोई गाने हो गए, पिक्चर हो गई, कुछ भी जो तुमको मोटिवेट करता हो वो करो। अगर दोस्तों से डिमोटिवेट हो रहे हो, यार वो बढ़िया कमा रहा है, तो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो, आइसोलेट कर लो खुद को। और पर ये है कि अपने जैसे लोगों के साथ बने रहो, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ साइकिल में है, फिर उनको भी जरूरत है किसी ना किसी की। तो इस तरह अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हो
और कभी खराब लगता है कि मेरा टेस्ट में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा, मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ब्रेक ले लो 2-4 दिन का, कुछ भी जो आपको पसंद हो, कहीं घूमने चले जाओ, पिक्चर विक्चर देख लो और इजी रहो, मतलब ऐसा कुछ लोड लेना नहीं है ज़्यादा। और कुछ हाँ, इंटरव्यू अभी मैं कवर करता हूँ थोड़ी देर। प्रीलिम्स का मैं सजेस्ट करूँगा 1 साल पहले। मैं तो यही करूँगा भाई, ले लो, मतलब मैं तो उल्टा सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप मेंस पढ़ो। कन्वेंशनल अगर आप पढ़ते हो ना तो प्री इजी हो जाता है काफ़ी। कन्वेंशनल में आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है, कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ज़्यादा ही पढ़ते हो, जैसे आपको थ्योरी भी याद रखनी पड़ेगी। प्री में आप क्या करोगे, स्टेटमेंट टाइप पढ़ोगे। अगर आप मेंस तैयार कर रहे हो, सॉइल का कोई टेस्ट है, ट्राइक्सल टेस्ट हो गया, तो अब ट्राइक्सल टेस्ट आपको पूरे दिमाग में रहेगा कि अच्छा ऐसे था, पोर प्रेशर नापा था मैंने, ये मेरा प्रोसीजर था, इस तरह करते हैं, इससे ये मिलता है। तो सारी अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो न्यूमेरिकल हो गया है, और प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आते हैं तो भाई ऐसे सैंपल कैसे बनाते हैं वो सब, तो वो तो अपने आप हो ही गया ना। तो मैं ये तो सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम है, 3rd ईयर 4th ईयर में हो, या आपका 1-2 साल बाद का प्लान है कि मेरे को 1-2 साल बाद देना है ईयर्स, तो आप पहले कन्वेंशनल तैयार करो, उसके बाद आप उस प्री स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हो। जब प्री से 4-5 महीने बचते हो तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, प्रीवियस ईयर कर सकते हो, तो वो मेरे ख्याल से हेल्प ज़्यादा अच्छा से होगी उसमें। और कुछ इससे प्री के जस्ट बाद यार थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक रहता है प्री के 1.5 महीना पहले तक। आपका रिवीजन आप लोग करते हो, उसके पहले भी आपको 6-7 महीने क्लास लगातार लगी रहती है, कहीं जाने को नहीं मिलता, तो 10-15 दिन टाइम दो। अब तो जैसे गेट भी साथ में ही है, पहले तो गेट ऐसा था कि जनवरी में प्री है, फरवरी में गेट है, अब तो साथ में ही है, तो सब दोनों एग्जाम में सल्टा लिया। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करो, घूम लो, फिर लो, दोस्तों से मिलो, 5-7 दिन का टाइम दो। टेस्ट इनकी आंसर की आ जाती है, क्वेश्चंस की आंसर की से अपना रफ एस्टिमेशन लग जाता है कि ठीक है मेरे 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड से सीट्स कितनी हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया हो जाता है कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो उतना अगर आपको निकल रहे हैं मेंस, तो मैं सजेस्ट करूँगा मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो मेंस की प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करनी है, अगर आपने कोचिंग करी है तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, और अगर आपकी कोचिंग कर ली है ऑलरेडी, पहले आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या आप खुद से ही पढ़ रहे हो पहले से ही, तो प्रीवियस ईयर से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर से तैयार करो। प्रीवियस ईयर से आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि मुझे किस तरह आंसर करना है। और मेंस में क्या रहता है, मेंस में कंटेंट जैसे हमको क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है, मेंस में अगर टाइम लिमिट होती है, दूसरा क्यू कैप होता है तो उसमें लिमिटेड पोर्शन होता है, आप गलत करके बार में आपको आंसर करने की जगह मिलती नहीं है, तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम आपको इक्वली देना है। 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे, तो उस हिसाब से 180 मिनट आपको लगभग 35-40 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो आप वो तैयार करो, और टाइम के मतलब बट एक ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि यार ये तो मेरे को आता था या ये डिफिकल्ट है तो मैं करके रहूँगा। हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, चाहे ईजी है, चाहे हार्ड है, चाहे लंबा है, चाहे छोटा है, हर का 2 ही नंबर या 12-15 नंबर जो मेंस में होता है वही मिलेगा। तो ईगो पे नहीं लेना, कुछ नहीं आ रहा है उस टाइम छोड़ दो, जितना मैक्सिमम स्कोर अपना कर सकते हो मैक्सिमम अटेम्प्ट वो आप करो मेंस में। मेंस में ये भी रहता है कि आपको लिखना कैसे है, उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस होते हैं वहां से कर सकते हो कि कितना लिखना है। 10 मार्क का पूछा है तो थोड़ा अच्छे से लिखना है, अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क में आ गया है और मेरे को तो बहुत सारा आता है तो मैं 2 पन्ने भरूंगा, नहीं, 4 मार्क का उसने इसलिए दिया है क्योंकि आपका टाइम मैनेज हो गया है। 4 मार्क का क्वेश्चन था, आप उसको 5 मिनट में सटा दो, ठीक है, इतना ही आपको उसमें लिखना है। तो इस तरह को मेंस प्रिपेयर करना है। मेंस में मार्क्स बढ़ाने के लिए पहले बात तो एक्यूरेसी, न्यूमेरिकल है तो सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूमेरिकल सही होता है तो पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। डायग्राम अगर उस क्वेश्चन में कहीं भी लगता है, कहीं भी कोई डिजाइन का क्वेश्चन आ गया, सेप्टिक टैंक डिजाइन कुछ भी आ रहा है, सीवर डिजाइन, डायग्राम बना दो, कैसा भी बने बना दो, नंबर मिलता है, ज्यादा अच्छा मिलता है। अच्छे से देखो, साफ सुथरा और सही करने की कोशिश करो,
मत लिखो कुछ भी नहीं आता है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी नाप शनाप, एग्जामिनर का दिमाग भी खराब हो जाता है कई बार, तो वो नंबर फिर नेगेटिव, दूसरे जो क्वेश्चन सही है उनमें भी वो बेकार नंबर करता है, तो वो वाली मिस्टेक होती है। तो मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज लो मेंस की, और ईमानदारी से देनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है खासकर, प्रिंट आउट ले लेंगे, घर पे रहेंगे, उसको 4 घंटे 5 घंटे में सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 280 और कुछ हो रहा है कि भाई 280 आ गए। तो नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि फिर मेन एग्जाम में आपको 5 घंटे नहीं मिलते। तो आपको पहले से अपने आप से जेन्युइन रहना है, जितना 3 घंटे में कर पाते हो उतना करो, अपलोड करो और नंबर लो। तो ये होता है, और यही होता है कि तुम्हारी मेंस में कई बार रैंक नहीं आती है टेस्ट सीरीज में, लगता है मेरी 12-15 कितनी रैंक आ रही है, बच्चों की तो फर्स्ट आ रही है, ये तो लगातार हर टेस्ट में टॉप कर रहा है। सब पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर कई लोग ऐसा करते हैं, मेरे को पता है। 4-5 घंटे वो लेते हैं टेस्ट देने के लिए, क्योंकि ये लोग 2 दिन का टाइम देते हैं। मंडे को टेस्ट अपलोड हुआ और आपको आंसर भी अपलोड करनी है वेडनेसडे या ट्यूसडे को शायद रात में, तो कई लोग टाइम लेते हैं। तो इस तरह अपनी बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, कैसा आपने परफॉर्म किया है, आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं, कौन से आपके रिपोर्ट, क्योंकि मेडिजी में जब आप अपलोड करते हो ना टेस्ट, आपको आंसर शीट मिलती है अपने वापस, तो उसमें वो रिमार्क करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी कहाँ कमी रह गई या आपने नहीं किया सही से, मतलब पूरा रिमार्क को लिख के करते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है, ऐसे नंबर देके छोड़ दिया। जो भी उन्हें कमी लगती है वो आपको सजेस्ट करते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी या खराब थी, आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए, आपके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए, आपको क्वेश्चन चॉइस कैसी रखनी है, वो सब रहता है। तो वो हेल्प देगा आपको। और कुछ सब्जेक्ट्स में आपने पूरा सब कुछ पढ़ा था हर सब्जेक्ट? अब यार थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे बीएमसी, सोम, स्ट्रक्चर, मतलब जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आप कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं कर पाओगे। इवन स्ट्रक्चर में अब तो डायनामिक्स भी पूछने लग गए हैं, ठीक है, तो वो भी हो गया। आरसीसी डिज़ाइन काफ़ी पूछा जा रहा है, तो वो आप करो। छोड़ कुछ नहीं सकते। छोड़ने में मैं ये बोलूँगा कि मैंने जहाँ पे थोड़ा बहुत ढिलाई छोड़ी थी वो थे जो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, टनलिंग, डॉक एंड हार्बर, तो मैंने वो छोड़े नहीं थे, बस उनको एक बार ऊपर से देख के गया था कि एक अगर कुछ थ्योरी का 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं हो कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। कहीं आगे डिटेल्ड भी हैं, कई लोग उसके लिए पढ़ते भी हैं काफ़ी अच्छे से अलग अलग बुक्स से, तो मैं बोलूँगा उसमें इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डेफिनेशन पूछ ली, टाइप्स ऑफ टनलिंग पूछ ली, इस तरह पूछते हैं, तो आप इतना तो कम से कम कवर करके जाओ कि आप टच करके जाओ हर सब्जेक्ट्स। क्योंकि अब क्या हो गया, अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, सीट कम हो गई, तो पहले तो चल जाता था कि अगर 500-600 में से 350-400 नंबर आ रहे हैं तो साइड सिलेक्शन हो जाएगी, अब नहीं चलता, वो वाला हो गया। तो अब छोड़ नहीं सकते। मैंने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अलावा सब पढ़ा, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या है, कैसे उसकी वो सेलेस्टियल, तो वो सब मैंने छोड़ दिया था। बाकी ऑलमोस्ट सब पढ़ा था, चाहे ऊपर से जियोलॉजी है, जियोलॉजी कई लोग छोड़ देते हैं, जियोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है उसमें, डेफिनेशन है, जॉइंट, फॉल्ट, फोल्ड, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, तो अगर क्वेश्चन आता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, आ जाता है आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कवर कर लो। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सब्जेक्ट्स का, लाइक पर्टिकुलर डे में एक माइनर सब्जेक्ट लेना है, ऐसे नहीं करता था यार, मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर करता था, मैं 2 सब्जेक्ट पैरेलल कभी नहीं करता था। और हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है, जैसे स्ट्रक्चर आपको काफ़ी टाइम लेगा, एक क्वेश्चन आधा घंटे लगता है सॉल्व करने में। स्ट्रक्चर में आपको एक ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर आपने पहले स्टेप में कहीं गलती कर दी, वो गलती नीचे तक आती है, टाइम वेस्ट होता है। मेंस में आपको इतना स्पेस मिलता भी नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन गलत, स्पेस छोड़ो, टाइम भी नहीं मिलता। अगर आपने 20 मिनट एक क्वेश्चन को दे दी ना, तो उसको दोबारा लिखने बैठ गए, तो पहली बात तो उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी में आपका क्वेश्चन को दोबारा भी गलत होएगा, और दूसरे जो क्वेश्चन का जस्टिस होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रक्चर में आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम अलर्ट रह के, नींद में नहीं रहना है, सब कुछ देखना है, कौन सा क्या, कहाँ पे कौन सा सपोर्ट लग रहा है, क्या मेरे कॉन्सेप्ट थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहीं जो मूवमेंट हर डिग्री वाला मेथड होता है वो वाला, उसमें पूरा फोकस रहना है। स्लोप डिफ्लेक्शन में इक्वेशन बनाने में लोग गलती कर देते हैं, आता सब कुछ सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन गलत बना दी, आंसर गलत आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में स्पेशली ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर आपका कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस करते हो और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हो।
बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं इस स्ट्रक्चर में, गलती होने का कोई चांस नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर देके आता है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आप सब्जेक्ट का पूछे थे ना, तो उसमें डिपेंड करता है कौन सब्जेक्ट है। आते से आपका टाइम लेगा, उसमें डिज़ाइन क्वेश्चन होते हैं। डिज़ाइन क्वेश्चन जैसे आपने अलग अलग एक फॉर्मेट बना लिया, सिंपल बीम, टी बीम, डबल रिइंफोर्स्ड, स्लैब, फाउंडेशन, स्टेयरकेस, एक एक क्वेश्चन सबका जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। इस तरह मुश्किल से 10-12 डिज़ाइन होती है उस आरसीसी में, और वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह जैसे ये हो गया, इनमें टाइम नहीं लगेगा। अब मैं ये नहीं करूँगा इनके कोई 20 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं, वो टाइम वेस्ट है। और आपको सिंपल बीम डिजाइन करनी आती है, फिर बाकी तो कर ही दोगे। वो सिमिलर क्वेश्चन कर सकते हो प्रीवियस ईयर में, क्योंकि हो सकता है डबल रिइंफोर्स पहले भी पूछा गया है, बार बार आ जा रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डबल रिइंफोर्समेंट का, तो आप अगला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो डबल का, ठीक है। तो इस तरह आप टाइम बचा भी सकते हो। कोई हार्डी क्रॉस का क्वेश्चन है, आपको एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें इंटरनल हिंज भी आ गई, सपोर्ट भी अच्छा वाला आ गया, तो जो भी आप उसके अंदर वो करते हैं ना, रिड्यूस कर देते हैं इक्वेशन को, एक तरफ अगर फ्री सपोर्ट रहता है वो, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सारे कंसेप्ट आपके लग जाए, प्रिपरेशन के टाइम पे वो मिल ही जाता है। वो एक क्वेश्चन होता है जो सारे कंसेप्ट लगा देता है। टीचर्स भी लगा देते हैं, कई बार क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराता है टीचर्स, कि एक क्वेश्चन सारा कंसेप्ट लेगा, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके रखो पहले से, तो जब आपका रिवीजन होगा आप वो एक क्वेश्चन करो और सारा टॉपिक खत्म। बार बार हार्डी क्रॉस के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी प्रिपरेशन फेज में लगा सकते हो, बाद में जब रिवाइज करो तब नहीं लगाना, ठीक है। अभी लगाना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है और गलतियां अवॉइड करनी है। तो इस तरह आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। कई सब्जेक्ट्स टाइम नहीं लेंगी, बीएमसी हो गया, रिवाइज करनी है, कुछ नहीं है उसमें। मेंस के लिए अगर पढ़ रहे हो, टेस्ट के स्टैंडर्ड्स, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सीमेंट कितने तरह की होती है, किसकी क्या क्वालिटी होती है, किसमें कितना कंटेंट होता है, किस तरह काम कहाँ पे काम आती है, इस तरह बीएमसी इजी हो जाती है। सोम बहुत कम टाइम लेगी आपका, मतलब जब आप रिवाइज करोगे। तो सोम में कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूलाज हैं, लाइंस ऑफ फॉर्मूलाज हैं। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो इसको, तो सारा सोम निकल जाता है। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आरसीसी मैंने बता दिया। स्टील के अंदर कई लोग फंसे रहते हैं, वो शुरू के 4 चैप्टर तक हो जाते हैं, कनेक्शंस हो जाते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस हो जाता है, उसके अलावा वेल्डिंग हो जाती है, और फिर आते हैं बीम भी, चलो पढ़ लेते हैं। बीम में वेब क्रिपलिंग, वेब बकलिंग पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं प्लेट गर्डर, जो लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आते थे, तो उस पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में, पर मेंस में आपके पास चॉइस होती है। 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 करना है, तो अगर चॉइस है तो इतना उस पर एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर लेट गर्डर का कोई एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा कभी भी नहीं मिला कि जो सारे क्वेश्चन एक तरह से हो रहे हैं, उनमें हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट है। तो अगर आपको पढ़ाने वाला है आप पढ़िए, अगर इंटरेस्ट आता तो पढ़िए, पर ऐसी चीज़ें अगर छोड़ना भी चाहें तो मुझे ऐसे छोड़ सकते हो। प्लेट गर्डर हो गया, उसमें आगे भी क्वेश्चन थे, गैंट्री गर्डर, कॉलम बेसिस, स्लैब्स वगैरह, तो वो अगर अवॉइड भी हो तो चलेगा। सीपीएम पार्ट बहुत ईजी है, एफएम फिजिक्स है। एचएम के लिए मेरे को पहले नहीं आता था एचएम, फिर जब मैंने ढंग से पढ़ा खुद से, एक बुक लेके आया था मैं, अभी याद नहीं वो नाम, स्टैंडर्ड बुक थी वो एचएम की। तो एचएम के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्लियर करो, आपको सब क्लियर हो जाता है। बस एक आप विजुअलाइज कर लो, यूट्यूब पे सारे वीडियोस हैं, कौन सा टरबाइन कैसे चलता है, किसमें पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अगर वो विजुअलाइज हो गया और इम्पल्स मोमेंटम आती है तो एचएम सबसे ईजी सब्जेक्ट है। उसके बाद ओसिया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्रोलॉजी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर करो, मोर देन एनफ, सब कवर हो जाता है। हाइड्रोग्राफ कितनी बार पूछ रहेगा, एस कर्व, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कर्व, डेड कर्व, सब कितनी बार पूछेगा, वही जो आती है कंसिस्टेंसी ठीक करते हैं, तो वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी में। तो ये सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, इरिगेशन हो गया। और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के अंदर क्या होता है, मिस्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बड़ा भी सब्जेक्ट है, रिवाइज आपको बार बार करना पड़ेगा। और एक मेरे को रहता था कि मेरे साथ क्या रहता था कि फर्स्ट चैप्टर चालू होता था पढ़ना कोई भी सब्जेक्ट, और फिर 14 चैप्टर 15 चैप्टर होता था सॉइल में। तो मेरे हमेशा शुरू के 8 चैप्टर बहुत मस्त होते थे, और आखिरी के चैप्टर हमेशा बेकार, में बार बार भूलता था। तो मैंने एक बीच में ये भी स्ट्रेटेजी लगाई थी कि एक बार रिविजन करूँगा 1 से 14, दूसरी बार करूँगा 14 से 1। तो ये सॉइल जो बड़ी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इनमें मेरे को बहुत काम आती थी। आगे पीछे रिवीजन करो, सारा क्लियर रहता है। याद रखने में बहुत जरूरी है, सॉइल में याद रखने को बहुत कुछ है, थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे,
एनवायरनमेंट में भी सेम है। एनवायरनमेंट में कई लोगों को क्या दिक्कत होती है, जो मुझे भी थी शुरू में, कि डायग्राम क्लियर नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं सब, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या लग रहा है, एक स्टोरी जो होती है पानी की। तो जैसे मेरे को पहले नहीं पता था कि यार ये क्यों बना रहे हैं, तो बार बार कितना कितना डिजाइन बनाएंगे सर। तो स्टोरी जो पानी की है, नदी से लेके घर के नल तक, और घर के नल के बेस से होके वापस नदी तक, सीवर तक, उसके बीच में क्या क्या कहाँ कहाँ लग रहा है, एक बार वो डायग्राम कहीं पे बना लो। आपको पता होना चाहिए कि पानी यहाँ से आया, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर हमने उसके बाद क्या किया, और उसके बाद हमने उसको ठीक कैसे किया, वापस तो नदी में गया, फिर वापस वो सप्लाई होगा। तो साइकिल कैसे चलती है, कहाँ कहाँ क्या लग रहा है, अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आपके साथ बाकी भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था हाईवेज वगैरह पढ़ना, वो इजी भी है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उससे इजी क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। रेलवे वगैरह के लिए थ्योरी बुक काफी है, प्रीवियस ईयर भी अगर लगाता है थ्योरी बुक की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर बहुत है, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज कोई भी। और जो एवरेज स्टूडेंट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना पढ़ना है उसको, और आपने कितना जल्दी पढ़ा? मैं बोला तेरे को कि कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि इतना घंटा पढ़ना है या इतना टाइम मेरे को लगेगा। मैं खुद जब आया था ईएस में, मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करके आया था एग्जाम। मेरा मेन था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा, मेरे को लगता था बैकअप चाहिए, सिविल सर्विस में पता नहीं होगा नहीं होगा, ईएस तो बहुत इजी एग्जाम है, 1 साल में निकाल दूंगा, 4 साल हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। बिलो एवरेज हो तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि ईएस ऐसा ही एग्जाम है, ईएस आपको टेस्ट करता है जगह जगह। बिलो एवरेज हो सकता है आपका गेट में पीछे रहो, पर ईएस आपको पूरा चांस देगा अपने आप को प्रूव करने का। टाइम फिक्स नहीं है, 12 घंटे 10 घंटे, जो पढ़ाया है क्लास में घर जाके ढंग से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर उसी दिन बन जाए बहुत अच्छी बात है, तो आपको फिर बाद में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना कि मैं रिवाइज करूंगा फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। सेम डे जो पढ़ाया उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उससे रिलेटेड वर्कबुक में कुछ क्वेश्चन है वो कर लिए, प्रीवियस ईयर अगर कुछ क्वेश्चन है वो कर लिए। जो 1-2 क्वेश्चन सर यहाँ भी कराते हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सब कुछ कवर होता है उस दिन का, तो वैसे वाले क्वेश्चन अगर देख लो। तो कंटेंट वाइज चलो, आर वाइज मत चलो कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ने हैं, अब इसमें चाहे 5 घंटे लग रहे हैं या 2 घंटे लग रहे हैं, मेरे को पढ़ने हैं ये 5 टॉपिक, ठीक है। इस तरह चलो, कोर्स अपना खत्म करो, और पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो मैं बिलो एवरेज हूँ, वरना ये आपको खा जाएगा पकड़ के। तो ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होएगा, तो कुछ नहीं आता, मैं तो IIT NIT भी नहीं गया, ये तो सब ऐसे IIT वाले लड़के आते हैं, कुछ नहीं होता। मैं NIT से था, वो भी सबसे लोअर वाली, और जब मैं आया था वहां से कुछ नहीं आता था, BMD तक नहीं बनता था मेरे से सही। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आओ, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर्स सब सिखाते हैं आपको, और जेन्युइनली अपनी मेहनत करो, एफर्ट दो, और ये सोचना खत्म कर दो कि मेरे को कुछ नहीं आता या मैं कमजोर हूँ पढ़ाई में, ऐसा कुछ। पूरा टाइम दो अपना, अच्छे से करो, हो जाएगा। मतलब 6 महीने में नहीं होगा, 2 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, कहीं तो बैठोगे, मतलब कोई तो एग्जाम निकल ही जाएगा। इतना बेकार तो नहीं होएगा कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर 3 साल आप किसी चीज को देते हो तो कुछ तो सीख ही जाते हो। और कुछ जितना आता हो उतना मैक्सिमम। मेरा ये अब क्या हो गया, पहले तो 200 बेंचमार्क होता था, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 220 मार्क्स आ रहे हैं, काफी हैं। अब बेंचमार्क हो गया है 260 270, उतने नंबर आपके आने चाहिए, और वो आपके नहीं आएंगे अगर आप जीएस इग्नोर करते हो, क्योंकि टेक्निकल में आप कितना ही खींच लोगे, 300 में से 200 नंबर आ जाएंगे, 210 220, उससे ज्यादा तो फिर एक्सेप्शनल आ जाएगा कि भाई ये तो वो बार बार होता भी नहीं है, ठीक है। कभी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो 250 नंबर प्री में ही लेके आ जाऊंगा, टेक्निकल वाले पार्ट में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो 200 तक ठीक है, उतना आप रखो। 100 क्वेश्चन मतलब सही करने एग्जैक्ट, तो आप ये काम करो, लगभग 140 130 तक अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें कुछ गलत भी होता है तो आपका 200 तक रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज से आप वो देख सकते हो। उसके अलावा अपना जीएस प्रिपेयर करो। मेरा टारगेट था 220 230 के अराउंड टेक्निकल में, और 100 के अराउंड इसमें जीएस वाले पेपर में। तो टारगेट अपना हाई रखो, उतना आता नहीं है, 100 रखोगे तो शायद 80 आएंगे, पता मतलब वो किस्मत की बात है कैसा पेपर आ रहा है। अभी पिछले 2 साल से 21 और 22 से जीएस बहुत अच्छा आ रहा है,
ठीक है। टेक्निकल इजी आ रहा है, टेक्निकल में आप जल्दी भी कर रहे हो, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है, क्वेश्चन बहुत बेसिक आ रहे हैं, तो टेक्निकल हो रहा है। तो आप जीएस पे भी ज़्यादा ध्यान दो, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आएंगे 270 280। आप अकेले कहीं भी नहीं मार सकते। 6 महीने मेरी जयपुर से। हाँ, 6 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, उसके अलावा मैं मेंस बैच ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद कोविड था तो ऑनलाइन चला था। मैं मेंस दे नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने पढ़ लिया था कि क्यों ही उड़ाना उसको। बैठे ही थे, मैंने मेंस भी पढ़ लिया, 6 महीने प्री हो गई, 6 महीने मेंस पढ़ लिया। उसके बाद दूसरे एग्जाम्स आ गए थे, SSC, HPCL, ये सब एग्जाम्स शेड्यूल्ड थे, तो मैं इनकी तैयारी में चला गया था उस टाइम 6 महीने। फिर गेट आ गया था, उसके बाद चला गया, फिर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देने लग गया। प्रिपरेशन तो हो ही गई थी ना, मतलब पहले 6 महीने प्री पढ़ा, उसके बाद नोट्स बन गए थे, बार बार रिवाइज करो, हर एग्जाम में वही लग रहा था, बस क्वेश्चन चेंज हो रहे थे। SSC JEE के लिए कुछ एक वो किताब आती है छोटी, जिसमें आंसर गलत होते हैं काफी सारे। हाँ, गुप्ता है ना, गुप्ता एंड गुप्ता, हाँ, वो वाली मैंने बुक लगाई थी JEE के लिए, पर वो ऑनेस्टली कोई मतलब नहीं, वो कॉन्सेप्ट खराब कर देगी, उसमें पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो फिर मैंने छोड़ दी थी बीच में। अजीब होता है भाई इसमें क्वेश्चन, मतलब बिजी रखना है खुद को, खाली मत रखो, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जाम आते ही रहते हैं। कभी कोई स्टेट का आ गया, कभी कोई दूसरे स्टेट, जैसे कई स्टेट बहुत लिटरल होते हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, तो ये लोग दूसरों को भी परमिट करते हैं एग्जाम देने के लिए। तो और ठीक है, दूसरा एग्जाम जितने भी शेड्यूल्ड है, जब तक नौकरी नहीं मिलती है, जहाँ पे ट्राई कर सकते हो वहां पे ट्राई करो। बिजी रहोगे, थॉट्स भी गलत, नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे और चांस भी ज्यादा बढ़ेंगे। एग्जाम से कितना महीना पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम ही नहीं है। डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है तुम्हारा, कौन सा अटेम्प्ट है, और अगर प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट है, एटलीस्ट तुमको 1 महीना लगेगा सारा कुछ समेटने में, 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट। बाद में जैसे तुम्हारे अटेम्प्ट अगर बढ़ रहे हैं, तुम 2-3 साल दे रहे हो, 2-3 साल दे चुके हो, फिर तो एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर तो 10-15 दिन में सेलेक्ट देते हो। मेंटोर है, टीचर्स से थे, मेडीसी वाले, राम सर थे, सब तुम्हारे भी होंगे, तो वही करते थे सारा मोटिवेट, भाई का पेपर सिंपल है, तो बस यही थे मेंटोर, यही लोग करते थे यार मोटिवेट क्लास के अंदर। 12-12 घंटे मैं तो सो भी जाता था कई बार, तो इतना होता नहीं है। सुबह 8 बजे आप आ रहे हो, रात के 9 बजे फिर घर पे आके पढ़ रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, फिर सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो मोटिवेशन रहना तो जरूरी है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने बताया मैं क्रिकेट से लेता, तो जो भी आपको मोटिवेट करती हो चीज़, म्यूजिक कई बार होता है, कहीं अच्छे गाने होते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, पिक्चर होती है कहीं चक दे इंडिया, कहीं कुछ भी देख सकते हो, उड़ान है, और कुछ। मैं ES प्रीवियस ईयर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, ES प्रीवियस ईयर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ES प्रीवियस ईयर इतनी क्लासेस के कारण शायद 20 जनवरी तक बढ़ भी नहीं पाऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐड करना? मैंने यही बताया ना कि जब टाइम कम है तो रिसोर्स भी कम ही रखो, क्योंकि सब तू ये देखो कि पढ़ना भी है, करना भी है, फिर आखिरी में जाके समेटना भी है। तो ये मत करना कि 2-3 टेस्ट सीरीज ले रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बैंक भी ला रखे हैं। अब जो प्रीवियस ईयर तो कर रहे हैं ना, तो उसमें फेथ रख कि ठीक है मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, उसको ढंग से कर प्रीवियस ईयर को। उसमें प्रीवियस ईयर में भी जैसे मैंने बताया ना, स्टार कुछ ऐसे पेन से कुछ भी ले ले, अलग अलग पेन ले ले, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, उसमें स्टार मार्क कर ले कि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा मैंने कर दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा अच्छा था, कुछ उसमें अप्रोच होगी, सिली मिस्टेक्स किया था कुछ, वो भी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर तुमको पता लग जाता है ना कि ये मिस्टेक मैंने करी है, तो वो मिस्टेक दोबारा होती भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं जो कि कुछ नया कंसेप्ट देते हैं या कुछ नया सिखाते हैं, और जो हम चौथे टाइप के होते हैं जो नोट्स में ही नहीं होते हैं। तो वो जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना आखिरी, और जो टाइप 3 और टाइप 4 है, वही क्वेश्चन तुमको रिवाइज करना है। मान ले कोई क्वेश्चन में कोई जैसे सॉइल का प्रीवियस ईयर है और उसमें 150 क्वेश्चन है, अब 150 क्वेश्चन रिवाइज कर थोड़ी करेगा,
पर उस 150 में से तूने 20 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर रखे हैं कि ये मेरे को नया सिखाए थे या मेरे को नहीं आए थे, तो 20 क्वेश्चन देख लिया। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन दोबारा थोड़ी ना करना है। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला जो शॉर्ट नोट्स तूने बनाए हैं 20 4-5 पन्नों में, फॉर्मूला तो वहां से रिवाइज हो ही जाएंगे, तो वो क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। नए क्वेश्चन तेरे पास 20 हैं तो जल्दी रिवाइज होंगे, 150 क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे। तो इस तरह मतलब टाइम कम करना है कैसे भी करके। वो मेरी स्ट्रेटेजी थी, तेरी कुछ और हो सकती है, तो आप देख सकते हो। एक ही सब्जेक्ट को 2 बार क्लासरूम लेने में फायदा होता है। जैसे हमने अभी आरसीसी पढ़ी, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उसको 5-1 महीने हो गए, तो अब थोड़ा मतलब कमी आता है, तो उसको क्लासरूम एक और बार लेना चाहिए, आप उससे सेल्फ स्टडी ही करें। सेल्फ स्टडी करना है क्लासरूम में। टीचर क्यों है, टीचर सबके हिसाब से पढ़ाता है। टीचर ऐसा नहीं देखेगा कि यार इसने पहले पढ़ रखा है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। उसके बाद उसको हर बच्चे को सिखाना होता है जीरो से, बेसिक लेवल से। आरसीसी की क्लास 15 दिन से चलती है, 10-15 दिन। हाँ, तो तुम 20 दिन यहाँ बैठोगे, 20 दिन में तुम अपना 60% सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। आरसीसी छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट्स में रहेंगे। अब जैसे बहुत टाइम हो गया ना, पहली बात तो तुमको इतना टाइम देना नहीं है, 6 महीने का गैप देना ही नहीं सब्जेक्ट को। कोई भी सब्जेक्ट मेरा आज हुआ है उसको मिनिमम विदिन 45-50 डेज रिवाइज मारना है। ऐसे नहीं करना कि वो तो 6 महीने पहले पढ़ा था, खास करके ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। GS का चलता है, बाकी के साथ टेक्निकल खाते गलती नहीं करनी है। मतलब 45-50 डेज में अगर रिवाइज करते भी हो ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे पहली बार तुम रिवाइज करोगे तुमको 2 दिन लग गए, दूसरी बार रिवाइज करोगे 1 दिन लगेगा, फिर आप आधा दिन लगेगा, फिर आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। और नोट्स अगर बनाओगे तो पॉसिबली आधे घंटे में आरसीसी खत्म हो जाएगा। मैंने जैसे आरसीसी का मैंने स्ट्रेटेजी बताई ना, जैसे हर क्वेश्चन अलग अलग, जैसे बीम का कर लिया, स्लैब का कर लिया, अच्छा सा क्वेश्चन टी बीम कर ली, तो इस तरह केस बना के क्वेश्चन कर लो तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। और किसी को कुछ? क्वेश्चन करोगे तो रिवाइज हो ही जाएगा। और अगर बहुत टाइम हो गया है किसी सब्जेक्ट को, तो पहले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो। और क्वेश्चन जितने ज़्यादा, अब मैंने बताया तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, तुम जितने तरह के क्वेश्चन करो। अब एक ही तरह के क्वेश्चन तुम 5 बार 20 बार कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, वो तुमको कुछ ऐड नहीं करेगा। और हम तो 5 अलग अलग तरह के 5 अलग जो चीज़ें अलग अलग पूछी हैं, वो अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और किसी को कुछ? इफेक्टिवली रिवाइज करने का तरीका यह है कि तुम अपने नोट्स क्रिस्प बनाओ, ठीक है, थोड़े से उसको इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ने में। तो मैंने बताया ऐसे अलग अलग पेन का यूज़ करना है, वो सब। दूसरा बात यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना उसके अंदर। जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो आपको सब कुछ, आप जैसे बार बार पढ़ोगे ना किसी सब्जेक्ट को, 10 बार अगर आप पढ़ रहे हो तो वो अपने आप एक तो रिटेन भी ज़्यादा होएगा, दूसरी बात आपका टाइम कम, मतलब आगे जब 10 बार रिविजन होगा उसमें आपका टाइम कम लगेगा। तीसरी बात होगी क्वेश्चंस अगर आप करते हो ना तो आपका रिवीजन में ऑलरेडी वैसे ही टाइम कम होता है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिवली रिटेन रहता है मतलब थ्योरी के मुकाबले। अब क्वेश्चंस करो तो आपका रिटेंशन वैसे ही बढ़ता रहेगा। थ्योरी हम भूलते हैं, थ्योरी का ही रहता है लोचा। अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट रिटेन रहते हैं ज़्यादा लंबे टाइम का। और कुछ किसी को? मुझे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है सर। आप मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करते हैं? नहीं यार, मैथ्स डेली तो नहीं करता था। जो लोग मैथ्स का यार डिफिकल्ट अगर तेरे को लगता है तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसमें गलतियाँ होंगी, सीखोगे, नोट्स अच्छे से बनाओ, डिफिकल्टी ऐसे ही जाएगी। मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन से तुम एक्सपोज होगे उतना ही तुम्हारा मतलब परसेप्शन बढ़ेगा किसी चीज़ को लेने में। तो मैथ्स सुधर जाएगा, प्रैक्टिस करो। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए मोडेलिंग। हो गया खत्म? लॉग यार 1 2 3 5 7 9 ऑलमोस्ट इतना तो करो, फिर बाकी बन जाते हैं। जैसे लॉग 15 आ गया तो लॉग 3 into 5, फिर लॉग 3 + log 5, ऐसे सेपरेट कर सकते हो। वो हो गया। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के करने का।
अप्रोक्सीमेशंस का यूज करो। कई बार आता है कि 1.33 से डिवाइड करना है तो उसको 4/3 कर दिया, या कई बार 0.33 से किसी चीज को डिवाइड करना है तो अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए 0.3 से डिवाइड कर दिया, जल्दी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसके क्लोज अगर कोई वैल्यू आएगी कम ज्यादा छोटी मोटी तो वो वैसे कर सकते हो। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कैलकुलेटर का यूज अवॉइड करो, ठीक है। जब टेस्ट दे रहे हो या अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर पे, क्योंकि आदत धीरे धीरे बन जाती है। एक रूट्स निकालना सीख लेना, मतलब याद भी नहीं रहता हो, कम से कम स्क्वायर रूट वगैरह तो क्यूब रूट तो याद रह जाते हैं, उसके अलावा कई बार ऐसा आता है 223 1/5, ठीक है। इसका कुछ तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, उस टाइम पढ़ा था मैंने, तो बस ये n हो जाता है और उस n का फॉर्मूला होता है, तो कोई भी अगर 1/7 कुछ भी हो तो वहां से निकल जाता है। ये वाली चीज सीख लेना, ये काम आती है। कई बार दे देता, कई बार नहीं देता। और हो गया। एक इंटरव्यू का पूछा था ना आपने। इंटरव्यू के लिए आपको पहले तो खुद की प्रोफाइल बनानी है कि मैं कहाँ से आता हूँ। अगर आप कोई ऐसी जो स्कूल्स हैं फेमस, जैसे कोई आर्मी की स्कूल हो गई, केवी हो गई, वहाँ से अगर आप आते हो तो उस स्कूल के बारे में, उसकी हिस्ट्री, क्यों बनी, कैसे बनी। IIT अगर NIT से आप पढ़े हो, NIT से पढ़े हो तो कौन से ईयर ऑफ प्लान में वो आई थी, उसके साथ और कौन सी NITs आई थी, क्यों बनाई थी, IITs के बारे में भी आता है। तो ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। जिस जगह से आप आते हो, तो मैं जयपुर से आता हूँ, जयपुर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ो। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे बहुत सुंदर है, नहीं, उसमें इंजीनियरिंग क्या लगी है। जैसे हवा महल आपने सुना होगा, हवा महल में फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। उसमें फिर वो पूछेंगे कैसे स्टेबल रहता है, फाउंडेशन नहीं स्ट्रक्चर से बना, उसका क्राउन शेप है, ठीक है, तो वैसे स्टेबल रहता है। तो मतलब उसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट देखना है कोई भी चीज का। कई बार करंट अफेयर में आपका जो भी जगह होती है वो न्यूज में होती है। कभी कोई इलेक्शन हो सकते हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में वो लेपर्ड्स लेके आए थे, ठीक है। तो जो भी अगर रिसेंट न्यूज है आपके एरिया की, उसके बारे में आप अवेयर रहने चाहिए। आप बेवकूफ नहीं लगने चाहिए वहां पे कि इतनी, मतलब ठीक है ज्यादा चीजें आपको नहीं पता होंगी, ज्यादा डिटेल नहीं पता होंगी, जीनियस वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते, पर बेसिक ऐसे नहीं कि कुछ भी ध्यान नहीं देता है अपने एरिया के बारे में, इसको पता नहीं है। इवन कई लोगों से वो MLA MP का नाम पूछ लेते हैं, वो पता नहीं होता कि मेरे एरिया का MLA कौन है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए जहां से आप आते हो। अगर आपकी पढ़ाई दूसरे शहर से हुई है, मेरी श्रीनगर से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट अपने UT है वो अभी, और काफी वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकली भी वो काफी चर्चा में रहता है, तो उस हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सब एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, ठीक है। अवॉइड नहीं कर सकते उसको, ये नहीं बोलेंगे सर मेरे को नहीं पता। जो बेसिक चीजें हैं वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इन डेप्थ अगर वो कुछ जा रहे हैं तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर मैंने पढ़ा नहीं है। मना करने में कोई बुराई नहीं है। 21 वाले इंटरव्यू में मेंबर 3 के मैंने कोई 10-12 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आंसर किए थे, लाइन से नो बोला था, नहीं आता था, क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही थे। तो एक नो बोलने से डरना नहीं है, और ऐसे नहीं कुछ भी पूछ रहा है नो सर, ऐसे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लाना चाह रहे थे, यार मेरे को नहीं आता और मैंने नहीं पढ़ा, मैं इसमें आगे कोशिश करूंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको लग रहा है कि तुम अटेम्प्ट कर सकते हो पर श्योर नहीं है, तो आप उनकी परमिशन ले सकते हो कि सर विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, या आई वुड लाइक टू टेक एन अटेम्प्ट, जो भी है, ठीक है। तो वो मोस्टली बोल देता है कि हाँ गो ऑन। तो आप अपना अप्रोच उनको बता सकते हो, चाहे आंसर सही हो या नहीं हो, वो आपकी इच्छा देखते हैं कि आप में आंसर करने की इच्छा है या नहीं है, ठीक है। एक ये चीज हो गई इंटरव्यू के लिए। प्रिपरेशन के लिए ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो, ट्रांसक्रिप्ट से पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सॉल्व तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ी है वहाँ थोड़ी ना हार्ड क्रॉस क्वेश्चन देंगे। वो जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है ना, जैसे कोई ब्रिज में कोई इंजीनियरिंग लगी है, जैसे चिनाब वाला ब्रिज वो बनाया है अभी, उसमें वो आर्च ब्रिज है, डैक है, थ्रू है, कैसे उसके अंदर जैसे आर्च है तो आर्च कंप्रेशन लेता है, कैसे लोड लेता है, ब्रिज पे कौन कौन से लोड लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। वहां आपको कुछ सॉल्व नहीं कराएंगे, बेसिक चीजें करा देते हैं, जो वहां BMT बना दिया। और ये TP है, बेसिक क्वेश्चन में मतलब बेकार मत करना। बेसिक क्वेश्चन अगर आप पूछा है ना तो उसको सही से आंसर करने की कोशिश करो। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो आपको इंप्रेशन ही खराब होता है। बेसिक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेटली हाई क्वेश्चन तो आप ठीक है अवॉइड कर सकते हो कि सर नहीं पढ़ा। और अब आपको BMT पूछ रहे हैं सिंपली सपोर्ट का और आप बोल रहे नहीं आता, या उसको गलत कर दिया, SFD पूछ रहे हैं BMT बना दिया,
तो वो वैसा ब्लंडर मत करना, ठीक है। थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, थ्योरी वो पूछते हैं, टेस्ट अगर कुछ लगते हैं वो लोग वो पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, सॉइल के बारे में बहुत कुछ प्रैक्टिकल। जनरली लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स में सॉइल होता है, सॉइल, सोम, एनवायरनमेंट, आरसीसी और कंक्रीट, यही बोलते हैं लोग। तो यही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आते हैं। सॉइल में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके एरिया में कौन सी सॉइल है, ठीक है, वहीं फंस जाते हैं लोग, पता ही नहीं कौन सी सॉइल है। पढ़ लिया सारा सॉइल मैकेनिक्स, मेरे एरिया में कौन सी सॉइल है पता ही नहीं है, उस पर पूछ लेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी तो क्या करोगे। गुड़गांव में वाटर लॉगिंग बहुत होती है, 3 इंटरव्यू, 2 IOCL 1 ESC, तीनों में पूछा है गुड़गांव में वाटर लॉगिंग होती है, सोल्यूशन बता दो। तो ये पूछते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ऐसा तुम नहीं समझ पाओगे, तुमने हो सकता नहीं पढ़ी हो वाटर लॉगिंग, पर तो पता ही ना, ठीक है, पानी अंदर नहीं आता, कंक्रीटिंग कर दी, ड्रेनेज बढ़ाएंगे, सॉइल का एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, पाइप कुछ, फिर अगर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह का आप आंसर कर सकते हो बना के। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको कोरिलेट करने की कोशिश किया करो जब आप पढ़ रहे हो ना, अभी प्रिपरेशन फेज में ही। तो अभी से ही कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको कोरिलेट करा करो जो अपने आसपास है। अब ठीक है, स्ट्रक्चर आप कोरिलेट नहीं कर सकते, बीम कोई नहीं देखा होता है, पर थोड़ा बहुत आपको अवेयर रहना है। उसके अलावा थ्योरी आप पढ़ लेंगे, पर्सनैलिटी का नाम करना होता है, कई लोगों से क्या होता है पता होता है कि मेरे को बोलना क्या है, फिर वो फ्रेम नहीं कर पाते। इवन डेफिनेशंस कई बार पूछ लेता है कि मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है, अब सबको पता है a/r², पर वो तो फ्रेम नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेस, अब कई बार बोलेंगे व्हाट इज फेवरेट सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बोलेंगे व्हाट इज मटेरियल, फिर उसकी डेफिनेशन आती है, बोलते हैं सर मटेरियल, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। तो इस तरह आपको डेफिनेशंस, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना, और पर्सनैलिटी पे स्पीच क्लियर करना। स्पीच क्लियर करने के लिए मॉक दे सकते हो, आपको काफ़ी जगह लगता है मॉक, मेडीजी भी लेता है, मॉक दो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, बहुत बेकार लगेगी फर्स्ट टाइम में, गारंटीड लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, साफ मेरा टोन नहीं बन पा रहा है, मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, उसको क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्पीच क्लियर करो, और आता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है इंटरव्यू में, बाकी तो नॉर्मल ही है, कोई परेशान नहीं करते हैं, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, अच्छे से पूछते हैं। हो गया, ठीक है सर। हाँ, प्रीलिम्स में पेपर 1 सही हो जाता है, समझा नहीं मैं क्या बोल। सेकंड पेपर में टाइम लगता है, पेपर 1 में 2 घंटे होता है। हाँ, मैंने तेरे को स्ट्रेटेजी बताई ना, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे मत कर कि पहले फर्स्ट करूंगा फिर सेकंड करूंगा थर्ड करूंगा, ऐसे मत कर, चालू हो जाए फर्स्ट से थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है, जो थ्योरी वाले हैं। न्यूमेरिकल कैसा भी हो, जो डिफिकल्ट हो छोड़ दे। थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से, थ्योरी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, उसमें से पढ़ना है और टिक करना है। पहला राउंड 1 से 150 जो थ्योरी क्वेश्चन तेरे को आते हैं टिक मार, ठीक है कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। सेकंड राउंड जैसे 1 से 150 तूने कितने मार्क्स में से 70 थ्योरी के क्वेश्चन थे, 50 तेरे को आते थे, 50 क्वेश्चन तूने कर दिए। उसके बाद सेकंड राउंड लेगा, उसमें इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि 1 लाइन या 2 लाइन के होंगे वो कर दे, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड उसमें सॉल्यूशन थे सॉल्व करने में, पर तेरे को आते हैं, ठीक है, वो कर सकता है। तीसरा राउंड हो गया। फोर्थ राउंड जहां तेरे को गैस वर्क करना है कि नहीं भी आता है पर मैं करके जाऊंगा, ठीक है। मोस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको 30 क्वेश्चन नहीं आता है ना, मैं एडवाइस करूंगा मुझे 15 से 20 में गैस वर्क कर दो, क्योंकि नेट पॉजिटिव हो जाता है। अगर 4 नंबर का भी पॉजिटिव हो रहा है तो फायदा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो 4 राउंड वाली ये तुम टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना चालू करो। टेस्ट सीरीज में तुम्हारा टाइम तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टाइम अपने आप बचने लग जाएगा और मैक्सिमम अटेम्प्ट तुम्हारे हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो छूट जाएगा अगर तुम ढंग से प्रैक्टिस करते हो ना इसकी, तो इजी हो जाएगा ये, ठीक है। टाइम भी काफी सेव होगा। हाँ सर, मेंस में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे है सर? फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आईडी रहता है मोर और लेस, बाकी में ऐसा लगता है कि वो
आता है लेकिन कैसे सिलेक्ट करना है? फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होना एक ब्लेसिंग है, ये अपनी चॉइसेस कम हो गई, ठीक है। अब हमें 3 ही चॉइस करनी है, अब जो भी है फर्स्ट में तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन हर सेक्शन में से कम 2 करना जरूरी है ना। तो अब ये भी हो गया कि सेक्शन ए में से 2 करने हैं, मतलब एक तो करना ही है और एक हमको सेलेक्ट करना जरूरी है, और सेक्शन 2 में भी करना है। उसमें आपको क्या करना है, मार्क्स देखने, मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच क्वेश्चन। कई बार किसी क्वेश्चन में 20 मार्क्स की होती है, कई बार 15 ऐसे हो जाती है, 15-5। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस क्वेश्चन में मैक्सिमम मुझे आता है, मैक्सिमम मार्क्स का मुझे आता है, ठीक है। कई बार होगा कि 60 में 60 आता होगा, कई बार होगा इस क्वेश्चन में 60 में से 55 का आता है, इसमें 60 में से 50 का आता है, इसमें से ये आता है। एक मैं एडवाइस करूंगा, थ्योरी क्वेश्चंस कम से कम करने की कोशिश किया करो। थ्योरेटिकल जो होते हैं ना, अब 20 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, उन्हें तुम रामायण में लिख दोगे ना, 12 नंबर से ज्यादा देगा वो, 12-14 बस। पर अगर कोई 20 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी होगा, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन अवॉइड करो अगर जब तक कंपलसरी नहीं है, या ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जिसमें 60 नंबर है, इसमें 10-12 नंबर की थ्योरी है और बाकी न्यूमेरिकल है, तो वहां पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको आना चाहिए पहले बात तो, मैक्सिमम आंसर स्कोर, ये फैक्टर है कि मैक्सिमम आंसर में कौन सा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम न्यूमेरिकल कौन से में है, और यही है मैक्सिमम न्यूमेरिकल कौन से में है और मैक्सिमम आंसर स्कोर। और उसके अंदर देख लेना, यही 2 फैक्टर ही होता है मैक्सिमम। तो टाइम टेकिंग, कि किस में मेरे को टाइम, वैसे तो वो ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं कि सब में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है अगर तुमको आता हो, पर जैसे मान ले वो वाला क्वेश्चन आता है, वो पाइप जिसमें हम देखते हैं पाइप में जो फ्लो चलाता है लूप वाला, हार्डी क्रॉस ही होता है ना वो भी, हाँ। तो उसमें क्या है, जो इटरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो वैसे वाले क्वेश्चन भी अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अगर कोई डिजाइन का क्वेश्चन आ रहा है, भाग के अटेम्प्ट करो, डिजाइन का क्वेश्चन है फटाफट आ जाएगा, ठीक। मैं जैसे अभी गेट पे फोकस कर रहा हूँ, 6 मंथ्स का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या डिसेंट स्कोर लाने के लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ कि डिसेंट स्कोर आ जाए गेट के प्रीवियस ईयर करो, गेट की टेस्ट सीरीज दो, और गेट में लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखना है तुमको, मतलब कहीं भी अपने दिमाग को सोने नहीं देना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एक क्वेश्चन आया था अभी 22 वाला गेट भी दिया था मैंने, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो भी आंसर आएगा उसको 2 टू द पावर n में लिखना है और n की वैल्यू आंसर करनी है। मैं सो रहा था, 8 क्वेश्चन आंसर, मैंने 8 ही आंसर लिख दिया उसमें, 2 टू द पावर 3 था, 3 लिखना था, ठीक है। कई बार होगा पॉइज और पॉइजले वाला वो जो होता है वो बता देगा, पॉइज में 0.1 का फैक्टर होता है, ठीक है। यूनिट बदल देगा, न्यूटन एमएम में आंसर करना है, अब तो आंसर आ रहा है न्यूटन मीटर में आ रहा है, अब तुम वो चेक कर रहे हो। कई जगह मतलब ऐसा यूनिट्स में पागल बनाता है, लैंग्वेज में पूछता कुछ और है, हम हैबिचुअल किसी और को आंसर कुछ और आंसर करने को होते हैं, तो इस तरह की गलतियां होती है। अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, तो मैक्सिमम स्कोर हो जाता है गेट में। एक मिस्टेक्स कम से कम करने की कोशिश करना, नॉर्मलाइजेशन में फायदा रहता है, ठीक है। कोडर हो गया, सोचो याद है डिजाइनिंग करते करते प्रैक्टिस मेमोरी में आएंगे या अलग से रिवाइज करना? कोडर प्रोविजन का यार मैं बता दूं ना, आरसीसी का मैं बताया था, मानो तुमको बीम पढ़ना है। बीम कितने तरह की, सिंपल, डबल और टी, 3 बीम होती है, वो एलबी से ऐसी होती है, ठीक है। टी और एल एक ही बात है। जो बेसिक वो होते हैं, जो कोडर प्रोविजन तो बता रहा है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस देते हैं, क्लियर डिस्टेंस वो कितनी होती है, ठीक है, और क्लियर कवर कितना रखना होता है, वो सब इसमें अलग से लिख लें, वो सब में सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स बना के ये इतना इतना होता है, इसमें इतना होता है, इसमें होता है, ये स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आप बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। उसके बाद एक सिंपल बीम का अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हॉकिंग सेकंड दोनों हो गए, ठीक है। डबल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन और एक टी का बढ़िया सा क्वेश्चन। टी में सबसे अच्छा केस वो वाला होता है ना, इसमें बीच में आता है पहले, एक तो बिल्कुल नीचे आता है, एक फ्लैंज में आता है, एक बीच में आता है। बीच वाला सबसे अच्छा होता है ना, जिसमें यहाँ से यहीं पे कर्व ऐसे होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे बेस्ट है टी का। अगर ये आता है तो बाकी तो आता है, ठीक है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, इस तरह अलग अलग कर लेते, स्लाइड का भी बना लो, एक एक क्वेश्चन सब का करो,
12-15 क्वेश्चन में खत्म हो जाते हैं आधे दिन, ठीक है। यहाँ तक कुछ था, कोई था, कोई नहीं, हो गया। क्या 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 हाँ एग्जाम कौन सा दे रहे हो ना, प्री में क्या ग्रेजुएशन करके प्री अगर दे रहे हो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से हो जाएगा ना। मेंस अगर लिख रहे हो फिर पढ़ना पड़ेगा। इवन इंटरव्यू में भी एक लड़के से इस बार बनवा दिया था सेटिंग कर ऑफ कर का कि डिजाइन करना है सर्वे वाला, कि कैसे वो डायग्राम बना के बताओ डबल डिफ्लेक्शन वाला। तो मतलब इंटरव्यू के लिए थोड़ा ठीक है, इंटरव्यू में नहीं दिया है चलेगा, बोल सकते सर भूल गया कागड़ वो, थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कोई बात नहीं। पर मेंस अगर पढ़ रहे हो तो उसमें मेंस में सब कुछ पढ़ना है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट सब जितना भी थ्योरी का पार्ट है ना सब पढ़ना है मेंस में। डन।